شاہدرہ کوٹ شہابالدین میں سیاسی اور سماجی رہنما سہیل اقبال چشتی کی رہائش گاہ پر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر عدیل گجر کی زیر صدارت نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور طلبہ تنظیموں کے عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عہدیداروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پروگرام میں اے پی جی اے اور آئی ایس ایف کے عہدیداروں نے اپنی گفتگو میں اپنی تنظیموں کے وژن اور مقاصد کے بارے میں روشنی ڈالی۔ پروگرام میں سہیل اقبال چشتی نے شرکا سے جرمنی سے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ سہیل اقبال چشتی کے خطاب کا اعلان ہوتے ہی حاضرین محفل نہ صرف نشستوں پہ کھڑے ہو گئے بلکہ وہاں پر موجود شرکا نے خوب نعرے بازی بھی کی۔ سہیل اقبال چشتی نے اپنے خطاب میں کیا کہا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاک وطن کے پیارے نوجوانوں، میرے دوستوں، اور میرے وطن کے لیے ہر نیک کام کرنے کے لیے اور میرے وطن کی بہتری کے لیے جو میرے سینئر دوست، میرے جونیئر دوست، میرے چھوٹے بڑے جتنے احباب چشتی ہاؤس میں آئے، میں تمام کو ویلکم کرتا ہوں اور تمام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے دعاؤں کے ساتھ اپنے چند الفاظ پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ میرے یہ الفاظ میرے تمام دوست احباب تک سمجھ جائیں، پہنچ جائیں اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور میری جو خدمات میرے وطن کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ سب صاحبان کا چشتی ہاؤس میں ہماری اس نشست میں شمولیت پر دلی تھا گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں، کہتا ہوں، خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں کا جن کے جذبہ خدمت خلق کا میں متعارف ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری طبیعت آج ناساز ہے، کچھ میرے گلے میں خرابی ہے، کوئی میری آواز ساؤنڈ سسٹم نہیں اتنا ٹھیک، مگر پھر بھی میرے میں جتنی بھی انشاءاللہ عقل آمد ہوئی، جو بھی میری سوچ ہوئی، میں آپ تک پہنچاؤں گا اپنے الفاظوں میں انشاءاللہ۔ پھر بھی آپ نوجوانوں کے جذبہ کی قدر کرتے ہوئے میں چند الفاظ آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں اور بولنے لگا ہوں۔ خداوند تعالیٰ کرے کہ میری یہ حاضری، میری غیر حاضری میں یہاں لگ جائے چشتی ہاؤس میں، اور میرا شعر، میرا حصہ جو ہے خدمت خلق کے لیے، خدمت وطن کے لیے، وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمارے دین اسلام دین فطرت کہا، ہمارے دین اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے کیونکہ اس نے مکمل زندگی کا ضابطہ حیات پیش کیا ہے، اور سیاست ہماری زندگی اور معاشرے کا بہت اہم پہلو ہے، اور اسپیشل پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے سیاست اور صرف ایک سیاست ہی ہو رہی ہے۔ سیاست کرنی چاہیے، ہر ایک شعور رکھنے والے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ سیاست میں حصہ لے، مگر سیاست میں حصہ لے خدمت خلق کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اپنی جائیدادوں، اپنے پیسے کو، اپنی ویلیو کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں۔ میں تصحیح کرتا چلوں کہ سیاست کے اصل معنی دین اسلام کی روح سے خدمت خلق کے ہیں، اور آپ سب نوجوانوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے تمام جتنے بھی میں نے دیکھ رہا ہوں، اتنے جذبے کے ساتھ، اتنے ولولے کے ساتھ، ماشاءاللہ یہ آصف صاحب نے اور عدیل صاحب نے، جن لوگوں نے آپ لوگوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت ہی مشکور ہوں۔ الحمدللہ کہ میرے پاک وطن کے نوجوانوں میں یہ گرم خون کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم کچھ کر گزریں اپنے وطن کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے اس موقع کے اوپر ایک شعر ہے اقبال کا، وہ میں عرض کروں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بندے اپنے کو پیدا کیا ہے کہ میری عبادت تو کرے گا، میری عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہر وقت ہاتھ باندھے اللہ کے لیے سر بسجود ہے الحمدللہ، مگر انسان کو پیدا کیا انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے ساتھ مل جل کے، انسان کے انسانیت میں ہاتھ بٹانے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے۔ تو یہ وطن پاکستان بنا اسلام کے نام پہ، اس کی جو وجود، اس کی جو نیت ہے، اس کا سب اختیار جو کچھ ہے وہ اسلام کے لیے ہے اور اسلام کے اختیار میں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کرے میرے وطن پاکستان ایک حقیقت میں، باتوں میں نہیں، حقیقت میں ریاست مدینہ بن جائے،
जिस तरह कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने में कानून लागू किए थे, खुदावंद ताला करे कि हज़रत उमर की शक्ल में, हज़रत उमर के उसी सुन्नत के मुताबिक कोई ऐसा नेक बंदा यहाँ हो जो इस मुल्क को चलाए और इस मुल्क को हकीकत में दीन इस्लाम का किला बनाए। यहाँ हैं बड़े बड़े मुजाहिद माशाअल्लाह, मगर वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखते हैं, वतन के लिए अच्छी सोच रखते हैं, इंसानियत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। कुरान करीम में सूरत निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खिदमत खलक को मुकम्मल जामिया तौर पर बयान कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरी इबादत करो, शिरक ना करो, ठीक हो गया। वालिदैन के साथ उससे सलूक करो, रिश्तेदारों, यतीमों, मुसाफिरों, हमसायों, अपने गैरों के साथ मिलजुल के रहो और उसने सलूक के साथ रहो। इनफैक्ट गैर मुस्लिम, वो किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़र्क़े से तल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ भी उसने सलूक से पेश आओ कि ये सुन्नत रसूल है, ये शेवा पैगम्बरी है, ये शहदाए करबला और अहले बैत का ये शेवा सुन्नत है कि वो तो गैर मुस्लिमों के साथ बड़ा प्यार करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, बड़ी उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। तो हम तो फिर अपने हैं, तो हमें चाहिए कि अपनों की गलतियों को दरगुजर करें और कोशिश करें कि हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़ के, बांध के हाथ से हाथ चलें और इंसानियत की भलाई के लिए चलें इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल इसी तरह आका दो जहां, मेरे और आपके प्यारे आका खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ हदीस में खिदमत खलक को अपनाने पर जोर दिया हुआ है। किसी भी शख्स की असली दौलत उसकी दुनिया में की गई भलाई और एहसान है। अल्लाह खुद एहसान करता है अपनी मखलूक पे, अपने बंदों पे, और वो पसंद करता है क्या मेरे बंदे, तू भी मेरे अपने बंदों पे, अपने दोस्तों पे, अपने अहले याल पे, अपने ज़ीरो क़रब पे, अपने नज़दीक और दूर वालों पे एहसान कर कि मैं तुझ पे भी एहसान करूँ, जो हमेशा अल्लाह ताला का हम एहसान में है। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ताला ने हमें यह मौका दिया, हमें सेहत दी, हमें ज़िंदगी दी, हमें शऊर दिया कि हम कम अज़ कम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और ऐसी बात हम कर सकें, ऐसी बात हम सुन सकें जिसमें हमारी आखिरत का भी हो दारोमदार और हमारी ज़िंदगी का भी दारोमदार अच्छी चीज़ों के ऊपर हो। बिल्कुल इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत खलक का अमली नमूना मॉडल पेश किया, जिसे तारीख़ वरना आपके नाम से याद करती है। मदीना अस्तगफिरुल्लाह मदीना मवाफ़ात मदीना के नाम से याद करती है। अल्लाह करे मेरे वतन में रियासत मदीना हज़रत उमर फ़ारूक की सुन्नत के मुताबिक कायम हो जाए, खुदा करे। मेरे अज़ीज़ नौजवानों, आपका सबका चिश्ती हाउस में इकट्ठे होना इस बात का सबूत है कि आपके दिल में इंसानी और मुल्क की मफाद में खिदमत का जज्बा टूट टूट कर भरा हुआ है। मैं अगर काश मैं वहाँ होता पाकिस्तान में, तो शायद इससे बेहतर मैं क्या कर सकता था, इससे बेहतर मैं क्या बोल सकता था। सबको पता है कि हमारे वतन की क्या मजबूरियाँ हैं, क्या ज़रूरियात हैं, तो हमने उसको सामने रख के, बेशक आप किसी पार्टी से तल्लुक़ हो, बेशक आप ISF से तल्लुक़ हो, बेशक जमात इस्लामी से, मुस्लिम लीग से, किसी भी पार्टी से, वो है तो हम पाकिस्तानी हैं ना यार। हमें अपने वतन का पहले सोचना है, सियासी पार्टियों का बाद में सोचना है। अगर कौम खुदावंद ताला एक ऐसा लीडर देता है, ऐसा रहनुमा देता है जो हमारे लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे इलाके वतन के लिए बायस बरकत है, बायस रहमत है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें हमेशा हर वक्त उसके साथ देने के लिए तैयार होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें ऐसा साथी दे, हमें ऐसा रहनुमा दे जो तेरी रहमत का निशान हो, तेरी जहमत का निशान ना हो। मैं उन ख़ास तौर पर उन नौजवानों का और ख़ास तौर पे चौधरी आसफ गुजर साहब का भी, यार मैं दिली मुबारक देता हूँ बेटा तुझे, माशाअल्लाह तूने अपने एक छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत तू करता है और माशाअल्लाह तो एक बाज़मीर बाशऊर इंसान है। मैंने तो छोटी सी उम्र में तुझे देख लिया है। अल्लाह करे अगर तेरे में ये जज्बा है, तेरे साथ तेरे साथी अच्छे हों, जैसे चौधरी मुनीर गुजर साहब हैं, चौधरी शाहिद गुजर साहब हैं, मैं अब नाम नहीं ले सकता, उमर बशीर साहब है, चौधरी जवाद गुजर साहब है, और जो अहबाब स्टेज पे बैठे हुए हैं उनमें यूथ विंग के हैं, यूथ के हैं, APG के हैं, सीनियर सियासतदान हैं या सीनियर कोई भी ऐसे है तो पाकिस्तानी ना यार। तो मैं सबका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद ख़ासूस मैं शुक्रिया इस चिश्ती हाउस की जो टीम है, चिश्ती हाउस के जो खिदमत खलक के फलाई कामों के ऑर्गेनाइज़र हैं, माशाअल्लाह
आमिर साहब, अदील गुज्जर साहब, साकी साहब, अय्याज चिश्ती साहब, वहीद साहब, अजीशान साहब, मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें और हिम्मत दे, ताकत दे कि तुम चिश्ती हाउस में ऐसी ऐसी खूबसूरत मीटिंगें हों, महफिलें हों, जिसके कम अज़ कम इस एक भी अगर एक पौधा निकल आया अल्लाह की रहमत का, तो इसके साय में जो भी बैठेगा खुदावंद ताला करे कि चिश्ती हाउस से बरकतें लेके जाए अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने वतन के लिए। मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ और हर उन दोस्तों का, हर उन छोटों बड़ों का, तमाम इस महफिल में, इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में, इस गैदरिंग में जितने भी शरीक हुए हैं चिश्ती हाउस के अंदर, जिनका भी कदम है, मैं तमाम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम की ज़िंदगी में खैर करे, आसानियाँ हों और आसानी अल्लाह ताला बांटने के तौफीक अता फरमाए। मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर सकता को मेरा गला इतना साथ अभी नहीं दे रहा, मगर मैं फिर अब शॉर्ट करके अपनी बात को दुआओं के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ अगर किसी जवान बच्चे ने मेरे शाहदरा इलाके में पाक साफ सियासत, खिदमत खलक वाली सियासत, वतन के लिए, वतन की खिदमत के लिए सियासत करनी हुई की, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ हूँगा। और मुझे अगर सियासत में आना हुआ तो ये अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं आऊँगा, या मेरे इलाके के लोगों की अगर मैं होएगी मुझे कि भी चिश्ती साहब आप आएँ, तो फिर वक्त फैसला करेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ अपने वतन की खिदमत करनी है और मैं वतन की खिदमत करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह ताला से बहुत ही दुआ गो हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर आखिर में दुआ करता हूँ कि रब कायनात चिश्ती हाउस को, कोट शहाबुद्दीन शाहदरा को, लाहौर को, मेरे वतन को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना, और जो दोस्त इबादत आए हैं अल्लाह ताला सब की खैर करना। और मैं इस शेर के साथ, इस चंद खूबसूरत अल्फाज के साथ अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। मैं अपनी सारी गुफ्तगू में इसको खूबसूरत फ़िक्र पे करता हूँ। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं। शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। देखिए हमारे कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश माफ़ फरमाए, वो एक आम शख्स था, वो एक नाम था, चला गया, दुनिया से पर्दा कर गया। देखिए अल्लाह की शान, अमेरिका उसने जाना था, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि तूने जर्मनी हॉस्पिटल के फौत होना है, वो वहाँ फौत हुआ। वो एक शख्स तो चला गया, मिट्टी हो जाएगा, मगर उसकी शख्सियत काफ़ी लंबे अरसे तक कायम रह गई कि वो खुद तो दुखी होगा या नहीं होगा अल्लाह जानता है, मगर उसने खूब खुशियाँ तकसीम की, हंसियाँ तकसीम की अपने पाकिस्तानियों में और इंसानियत में। तो तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि उसके इस साले सवाब के लिए भी ज़रूर माफ़त करना। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, आप सबका हामी और नासर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास सहीद, यून्यूज़ लाहौर।